Thank you, everyone. Uh, Over to you, sir. May I request sir to start with the session now? Good evening, everyone. Welcome to our demo session on Microsoft Project. I'll just start sharing my screen now. So before starting with the session, just a small introduction about myself. My name is Anshit Gupta. I have also please keep yourself on mute throughout the session. Or any doubts that you have, you can type in the chat box. Also, at the end of the session, you will get enough time, 15-20 minutes to connect with me and ask doubts one-on-one. So throughout the session until I am teaching, please keep yourself on mute. So the course is going to be of 21 days. It will be focusing on intermediate as well as advanced level of MSP. MSP, as you may already know, is a planning software which is used for planning and scheduling, which is what my profile is. So coming back to my introduction, my name is Anshit Gupta. I have completed BE in civil engineering and I have done MBA in construction management from NICMAR Pune. After that, I have worked as deputy manager, project planning and operations in Shapoorji Pallonji Group for 3.5 years as a planning in charge for 2 different residential projects. My areas of expertise were, first of all, project scheduling, tracking and monitoring, tracking project delays, preparation of catch-up plans, all these things which happen on MSP itself. Then project material management, site logistics, costing, budgeting, preparation of cost to complete, preparation of various reports, risk management. Various softwares that I'm well versed with during my job tenure was MSP, Primavera, Advanced Excel, Primavera Risk Analysis, SAP, and AutoCAD. After these 3.5 years, I've quit my job and I've started my own construction company, and I've successfully running it since last 2.5 years. And parallelly, I have been taking various sessions with ProTrainee as an expert for first Microsoft project, which we have already completed 5 to 6 batches. Second is tendering, bidding, and contracts, which 5 batches something we have already completed, and 5th or 6th batch is going to start now. Risk management, quality, safety, various topics I have been taking with ProTrainee parallelly. So first we will discuss the tenure, what I'm going to cover in these 21 days. The course, which is going to be of 1 hour daily, that is total 21 hours. What topics we are going to cover theoretically, as well as every day we will be working on the MSP software itself. So the first and second days will be a few basics of planning. Okay. See, for example, MSP is a planning software. If you don't know what planning is and how planning is done, then it is useless to learn MSP or Primavera. So first you have to think as a planner to learn these 2 softwares. So first day, I'll be taking basics of project planning, which will include a few definitions. That is, what is planning, what is activity method statement, what are predecessor and successor activities, what are lead and lag, what is a critical path, activity sequencing, project scheduling, project tracking, and project monitoring and control. These are the few planning definitions, basics of planning, which I will cover. Then we will start with some basics of MSP software, a brief history about MSP, uses of MSP, types of task links in MSP, advantages and disadvantages of MSP over other planning softwares. Then after 1.5 session, we will start with the software itself. First day, we will go through some basic tabs which are there in MSP, as MSP is also a software which is developed by Microsoft. So just like Excel, PowerPoint, and Word, it is easy to get used to a Microsoft project because we have been in touch with Microsoft since our childhood. The Windows we use, everything is being developed by Microsoft. So it is a little easy to learn MSP than Primavera and other planning softwares. That's why MSP is more used more in India and Asian and Gulf countries, because it is comparatively easier to learn and less complicated than other planning softwares. So we'll go through the tabs, uses and functions of all tabs in MSP in detail. That is file, task, resource, report, project, view, and format tab. After being used to with the MSP screen, we will start with preparation of a schedule. When you prepare a schedule, first thing that you have to finalize is a project calendar. Why? Because it is a planning software. It doesn't care about anything other than the dates and timelines. Okay, so anyone who has ever worked in planning or know what planning is, what scheduling is, everything is just related to time. So first day, any schedule you
start throughout your lifetime, throughout your job career as a planner, you will start with preparation of a project calendar. क्या क्या आता है project calendar में? Changing working time, setting work weeks, entering holidays, preparation of complete project calendar which you will be using throughout your company. Then we will start with preparing a schedule. That is, first we will create different tasks and activities. We will create different resources. We will assign cost to these resources. Then we will assign resources to different tasks. Then we will learn resource leveling and smoothing. Then we will set up project milestones and we will finalize a schedule. We will set up a project baseline. Then we will learn what WBS is and how we create WBS in MSP. Then costing, assigning cost to different resources, cost rate table, cost resources, project cost and budget cost, which are different type of costs. So up till WBS, there are two kinds of schedule which you will be required to prepare if you are working in India or Gulf companies. So mostly 50% of the companies will ask you just to prepare a schedule which is time based. That is, it has activities, dates, their interlinks, and it just shows the duration of the project. Rest 50% of the companies will ask you to prepare an advanced level of schedule, which will have resources, which will have costs, which will have task usage sheet, everything linked to one another. It will show you the total budget of the project, everything. So these two kinds of schedule we will prepare. First intermediate part, that is 50% of our software, and then the advanced part, which is another 50% of our software, which includes resources, costing, everything. Both the schedules we will do project tracking, basics of tracking a project, automatically updating a project, manually updating a project, using percentage work complete data, dealing with delay problems. All these things we'll discuss on the software itself. Then the final and the most toughest part of project management and planning and any planning software is how to know earned value analysis. Now, to do earned value analysis on software, first you should know ki earned value analysis hota kya hai, what is its importance in project management. So one complete lecture theory I will take of what is earned value analysis. Then I'll show you some practical examples of earned value analysis. Then on the second day, we will perform this earned value analysis as curve, everything on the software, which is MSP. So we'll do the EVA using percentage complete value, using physical percentage complete value. All these terms will sound complicated to you right now, but when we start with the software, all these things will become very easy. Then बहुत छोटे छोटे कस्टमाइजेशन हम लोग देखेंगे MSP में, जिससे आपका आगे का काम इजी हो जाए. Because when you work as a planner, सिर्फ शेड्यूल बनाना ही आपका इकलौता काम नहीं होता है. There will be 15 टास्क जो आपको दे दिए जाएंगे आज करने के लिए, बट टाइम आपके पास उतना होगा नहीं. ठीक है, सब बहुत ज्यादा हेक्टिक जॉब होता है एक प्लानर का. तो लोग समझते हैं कि लैपटॉप पे बैठ के सिर्फ शेड्यूल बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो हम बहुत सारे छोटे छोटे कस्टमाइजेशन सीखेंगे MSP में, जिनसे हमारा मे बी हाफ एन आवर का काम 20 मिनट्स में हो जाए. बहुत सारे ट्विक्स एंड देखेंगे यहाँ वहां, जिससे हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए. देन बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती हैं MSP में, जैसे एक्सेल में भी बनती है, पावर पॉइंट में भी बनती है. सो हमारा हेड ऑफिस कुछ और रिपोर्ट्स मांगता है, क्लाइंट हमसे कुछ और रिपोर्ट्स मांगता है, साइट टीम को हमें कुछ और रिपोर्ट शेयर करनी पड़ती है. वो सारी रिपोर्ट्स हम लोग देखेंगे. प्रिपरेशन ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स जनरेटेड इन MSP फॉर शेयरिंग विद योर प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल एज योर प्रोजेक्ट टीम. इट कैन बी योर हेड ऑफिस, योर रीजनल ऑफिस, क्लाइंट, कोई भी हो सकता है, कंसल्टेंट, जिसको आपको रिपोर्ट शेयर करनी है. ये हम सारा रिपोर्ट सीखेंगे एंड वैल्यू हो जाने के बाद. ये हमारा लगभग 18 to 19 सेशंस में MSP कंप्लीट होगा. अब थ्रू आउट दी सेशंस हम लोग दो टाइप के शेड्यूल बनाएंगे. प्रिपरेशन ऑफ अ कंप्लीट प्रोजेक्ट शेड्यूल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंसिडरिंग टास्क विल ऑनर देयर कंस्ट्रेंट डेट्स एंड न्यू टास्क आर नॉट एफर्ट ड्रिवन. ये सब मीनिंग अभी फिलहाल आपको नहीं समझ में आएगा, आई विल टेल यू ड्यूरिंग दिस सेशन. फिर एक दूसरा हम लोग शेड्यूल बनाएंगे जिसमें न्यू टास्क और एफर्ट ड्रिवन, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं. वो हम डिस्कस करके फिर ये दो अलग टाइप के शेड्यूल बनाएंगे. अभी एक डाउट जो हर किसी को आता है कि सर आप तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का शेड्यूल बना रहे हैं, तो हम रेसिडेंशियल कमर्शियल ये तो सीख जाएंगे, बट मेरा हाईवे प्रोजेक्ट है या मेरा वाटर प्रोजेक्ट है. तो कैसा है कि आपने जिस डिपार्टमेंट में काम किया है ऑलरेडी, उसमें काम कर करके आपको उसके टेक्निकल पैरामीटर समझ में आ जाते हैं कि अच्छा मुझे पहले कॉलम इरेक्ट करने पड़ते हैं, फिर मुझे मेरी स्लैब डलती है, उसमें इतने एम क्यूब में इतना टाइम लगता है, फिर उसके ऊपर मैं टैंक बनाता हूँ. आपका डिपार्टमेंट जो भी हो, सॉफ्टवेयर MSP ही रहेगा जिसपे आप प्लानिंग करते हैं. सो दिस सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स टू थिंग्स. आपको आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए. अगर नहीं है, हम फ्रेशर हैं, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं या लास्ट ईयर इंजीनियरिंग में है, तो उसके लिए इसीलिए मैं रेसिडेंशियल का एक सेशन पूरा कंप्लीट शेड्यूल में डिटेल में जाने से पहले लेता हूं, जिसमें मैं पूरा एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग का आपको पूरा गो थ्रू करूंगा, जिसमें पूरे टेक्निकल पैरामीटर्स होंगे कि कैसे साइट पे काम होता है. आई विल ट्राई टू मेक यू इमेजिन कि ऐसे साइट पर पूरा एक बिल्डिंग बनता है और वो पूरा
आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, फिर हम लोग वो शेड्यूल एमएसपी में बना के देखेंगे। पैरेलली जो मैं एमएसपी में शेड्यूल बना रहा हूँ, जो लोग दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, कोई मेट्रो प्रोजेक्ट का हो सकता है, कोई हाईवे का हो सकता है, कोई वाटर डिपार्टमेंट का हो सकता है, तो उस चीज का आपको टेक्निकल नॉलेज ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको ये सॉफ्टवेयर मेरे साथ सीखते सीखते आपको आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डेटा सिर्फ इसमें फीड करना है, क्योंकि दिस इज अ एमएसपी क्लास, दिस इज नॉट अ सिविल इंजीनियरिंग क्लास कि मैं एक मेट्रो प्रोजेक्ट का भी शेड्यूल बनाऊं, फिर मैं पैरेलली एक रेलवे प्रोजेक्ट का शेड्यूल बनाऊं, फिर मैं एक हाईवे प्रोजेक्ट का शेड्यूल बनाऊं, फिर कोई बोलेगा सर ब्रिज का भी शेड्यूल बना दो। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हमें सॉफ्टवेयर सीखना है। सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन रियल स्टेट, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, जो सबसे कॉमन चीज होती है, घर से लेकर एक 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग तक का पूरा आपको इसमें मैं टेक्निकल नॉलेज पैरेलली दूंगा। ऑल्सो अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट का है तो आई कैन ट्राई टू शेयर शेड्यूल्स मेरे फ्रेंड्स वगैरह से मांग के, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू दैट, क्योंकि आपको उस चीज का ऑलरेडी टेक्निकल नॉलेज आ जाता है, तो आपको सिर्फ ये सॉफ्टवेयर में डेटा इनपुट करना है, जैसा मैं बताते जाऊंगा वैसा। अगेन हम लोग सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आए, हमको इंजीनियरिंग नहीं सीखना है इस क्लास में। देन मैं पैरेलली आपको असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। फिर सबसे लास्ट जो सेशन होगा उसमें हम पूरा 20 डेज का रिकैप लेंगे, हम डिफरेंस समझेंगे एमएसपी एंड प्राइवा वेरा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और बहुत सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगा एमएसपी के। क्यों ये बताना जरूरी है, उसका रीजन ये है कि जब भी आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है, फॉर एग्जांपल आपने कोर्स के लिए ऑप्ट किया, तो बहुत सारे लोग उन्होंने क्या पढ़ा वो भूल जाएंगे, क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे क्लास के बाद, बट सर्टिफिकेट उनके रेज्यूम में अटैच जरूर कर देंगे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का मैंने कोर्स अटेंड किया है। इसके लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस और ये बताना बहुत जरूरी है कि आपको सॉफ्टवेयर का कुछ याद रहे या ना रहे, एटलीस्ट वो 20-30 क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, बिकॉज आपने सर्टिफिकेट शो ऑफ करना चालू कर दिया है अपने रेज्यूमे में, एटलीस्ट उतना एमएसपी आपको आना चाहिए, बिकॉज यू आर हाईलाइटिंग दैट इन योर शेड्यूल, सॉरी रेज्यूमे। सो सबसे लास्ट डे पूरा रिवीजन, ये सारा इंटरव्यू में कैसे क्या चीजें पूछी जाती है एमएसपी में, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर सेशन फॉर सिलेबस फॉर द नेक्स्ट 21 डेज। तो आज मैं थोड़ा सा प्लानिंग का जितना मैं ब्रीफ में ले सकता हूँ, बेसिक डेफिनेशंस और थोड़ा सा आपको फील देने का कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली वी कैन नॉट स्टार्ट विद द टाइपिंग इन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इन द डेमो सेशन, बट वील जस्ट गो make you go through it a little bit of basics. So Microsoft Project is a project management software product which is developed and sold by Microsoft. Obviously एक project management का software है. It is designed to assist a project manager in developing a schedule. कोई भी प्लानिंग मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर को सबसे पहले एक शेड्यूल बनाने में असिस्ट करता है। शेड्यूल बन जाने के बाद अलग अलग एक्टिविटी में क्या क्या रिसोर्सेज लग रहे हैं वो कैलकुलेट करके असाइन करने में हेल्प करता है। फिर जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तब उसकी प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प करता है। एवरी डे यू कैन ट्रैक कि कितना काम होना चाहिए था, उसकी अगेंस्ट में कितना काम हो गया है, बिकॉज इतना प्रोजेक्ट डिले है तो उसके वजह से कितना डेज का आगे इम्पैक्ट आने वाला है, कितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ने कम होने वाला है फ्यूचर में जाके, सब कुछ आप 10 साल के प्रोजेक्ट में अभी से फर्स्ट मंथ से बैठ के ट्रैक कर सकते हैं। उतना डिटेलिंग सॉफ्टवेयर है ये। पूरे प्रोजेक्ट का बजट आप मैनेज कर सकते हैं, वर्कलोड्स मैनेज कर सकते हैं। वर्कलोड्स क्या होता है, जैसे 8 बिल्डिंग्स हैं, 8 अलग अलग इंजीनियर हैं, तो कौन से इंजीनियर कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितना काम आ रहा है, किस लेबर को आपने कितना काम असाइन किया हुआ है, कौन सी मशीन कितने आवर्स काम कर रही है, सब कुछ आप पैरेलली इसमें मैनेज कर सकते हैं। To understand Microsoft Project, it is very important to learn a few basic project planning principles. प्लानिंग के कुछ बेसिक फंडे समझना बहुत जरूरी है ये सॉफ्टवेयर समझने से पहले। ऐसा कुछ स्क्रीन दिखता है हमारा एमएसपी का। यहाँ पे हम लोग एक्सेल जैसे एक्टिविटीज टाइप करते जाते हैं। यहाँ हम उनका ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, उन्हें हम पैरेलली लिंक करते जाते हैं। देन हम लोग यहाँ पर इसका गैंट चार्ट पैरेलली बनता जाता है। Then a small history of MSP. The first version of Microsoft Project was released by for DOS in 1984. उसके बाद जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया था MSP purchased it. Microsoft bought all its right to the software in 1985. उसके बाद से बहुत सारे वर्जन्स MSP के आ चुके हैं। अभी फिलहाल MSP के 2000, 2003, 7, 10, 13, 16 और लेटेस्ट 2019 वर्जन अवेलेबल है। अब बात आती है इंस्टॉलेशन की। सो इंस्टॉलेशन का कैसा है कि MSP का मार्केट में स्टूडेंट्स के लिए कोई भी फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये जो 2016 वर्जन है, ठीक है, ये जब आप गूगल पे डालेंगे या यूट्यूब पे डालेंगे हाउ टू इंस्टॉल MSP 2016 इन माई पीसी, तो आपको बहुत सारे इसके फ्री के लिंक्स आ जाएंगे, उस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट फ्री में स्टूडेंट्स को कुछ भी सॉफ्टवेयर नहीं देता है, तो टाइप इट ऑन गूगल एंड गेट दिस 2016 वर्जन, क्योंकि 16 और 19 में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट 90% ऑफ द पीसीज में 2019 वर्जन नहीं चलेगा। मैं खुद आपको 19, 16 दोनों पे पढ़ाऊंगा, बट 16 अगर आपके पीसी में है तो आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से।
सो 16 आप इजीली गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ईजी है, डायरेक्ट लिंक आएंगे और डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। इट इज वेरी इजी, जैसे हम एक्सेल और पावर पॉइंट इंस्टॉल करते हैं। इट्स नॉट लाइक अ वेरी बिग गेम जो आपको हेल्प लगेगी इंस्टॉलेशन में। जस्ट आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, 3-4 लिंक समझने पड़ेंगे। वो भी इसीलिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट फ्री में किसी के लिए भी सॉफ्टवेयर नहीं देता है। जैसे एक्सेल फ्री में हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, वैसा नहीं है एमएसपी। ये एक बहुत ही कॉस्टली सॉफ्टवेयर है जो ऑब्वियसली कोई आपको अभी इस स्टेज पे प्रोवाइड नहीं कर सकता। देन बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। अभी शेड्यूल बनाना आने से पहले ये चीजें मुझे समझ में आना चाहिए कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट क्या होता है, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट का ट्रैकिंग क्या होता है, एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल क्या होता है। ये बेसिक टर्म्स आपको समझ में आ गए तो थोड़ी बहुत प्लानिंग तो आपको वैसे ही आ जाएगी। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट। अ प्रोजेक्ट इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट वर्क टू अचीव अ प्री डेस्टिन्ड रिजल्ट। जो भी कंप्लीट प्रोसेस करते हैं हम स्टार्ट से एंड तक, जो भी प्री डेस्टिन्ड रिजल्ट हमने सोचा है प्रोजेक्ट के लिए, उसको करने के लिए उसे हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। हर प्रोजेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कॉमन होती हैं फॉर एवरी प्रोजेक्ट। दीज इंक्लूड अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, हर प्रोजेक्ट को करने के पीछे एक रीजन होता है क्यों मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक एफर्ट। डिफाइंड टाइम स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सिविल इंजीनियर। हर प्रोजेक्ट का एक टाइम स्केल डिफाइंड होता है कि 6 मंथ्स में कंप्लीट करना है, या 1 साल में कंप्लीट करना है, या 5 years में करना है। उसमें मानसून पीरियड इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड है, क्या क्या है वो सारी चीजें। कॉस्ट, कितना बजट है मेरा प्रोजेक्ट का, बिकॉज अगर मैं एक छोटा सा घर भी बना रहा हूँ, मेरा 15 lakhs बजट है उस घर का, तो हो सकता है 15 की जगह अगर वो घर 18 का हो जाए तो मैं वो घर परचेस ना कर पाऊँ या मैं उसको कंप्लीट ना कर पाऊँ। इसीलिए कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे प्रोजेक्ट 500 करोड़ का हो, 5000 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो या 5 करोड़ का हो। एंड रिलेवेंस, कि ये मैं प्रोजेक्ट कर क्यों रहा हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। शेड्यूलिंग के लिए रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप कॉमन, इंडिया में सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो हम विलेज बना रहे थे, हाँ, जो बाहर से स्पोर्ट्समैन आएंगे उनको रुकने के लिए, हमारे उसमें से आधे हॉस्टल उस टाइम कंप्लीट ही नहीं हो पाए थे जब कॉमनवेल्थ स्टार्ट होने वाला था। तो मैं उस कॉमनवेल्थ गेम्स के हॉस्टल का करूंगा क्या अगर मेरा गेम स्टार्ट होने तक मेरा हॉस्टल ही नहीं रेडी हुआ। सो रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोजेक्ट हम क्यों कर रहे हैं। दैट विल हेल्प यू फाइनलाइज अ शेड्यूल अकॉर्डिंगली। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है हर प्रोजेक्ट की। कुछ सिविल वाले होते हैं, कुछ मैकेनिकल वाले होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, प्लम्बर होता है, फायर फाइटिंग वाला होता है, एचवीएसी वाली टीम होती है, वाटर प्रूफिंग वाला होता है, बहुत सब कुछ मल्टीपल डिसिप्लिनरी होता है। हर प्रोजेक्ट के 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला एक फॉर्मुलेशन फेज होता है, जब हम आइडिया आया मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में। मोबिलाइजेशन फेज होता है, जब मैं कॉन्ट्रैक्टर साइट पे मोबिलाइज करना चालू किया, काम स्टार्ट करना चालू किया। देन कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है, जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं एंड प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे लास्ट में जो यहाँ लिखना मेरे से मिस आउट हो गया है, डीमोबिलाइजेशन फेज होता है, जब सारा काम कंप्लीट हो गया तब कॉन्ट्रैक्टर अपना लेबर कॉलोनी, बैरिकेशन, पतरे वतरे, सारा मटेरियल साइट से लेके साइट हैंड ओवर करके क्लाइंट को चला जाता है। दैट इज डीमोबिलाइजेशन फेज। देन सम बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ डिसिप्लिन फॉर स्टेटिंग how to complete a project within a certain time frame, usually with defined stages and with designated resources। किसी भी प्रोजेक्ट को जो टाइमलाइन क्लाइंट ने बोला है उसमें कैसे कंप्लीट करूं, सच दैट कि टाइम फ्रेम भी फाइनल हो, स्टेजेस में प्रोजेक्ट डिवाइडेड हो, जो मेरे पास रिसोर्सेज है उसी में मुझे कंप्लीट करना है। उस पूरे प्रोसेस को प्रोजेक्ट की प्लानिंग बोलते हैं। एक्सक्यूज मी। वॉट एवर एक्टिविटीज वी परफॉर्म बिफोर एक्चुअल एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट कम्स अंडर प्रोजेक्ट प्लानिंग। जो भी चीजें हम काम स्टार्ट करने के पहले दिमाग में पूरा करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे, दैट ऑल कम्स अंडर प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, हर एक्टिविटी को करने की स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी होती है। जैसे वाटर प्रूफिंग की बात करते हैं कि मुझे छत पे वाटर प्रूफिंग करवानी है, तो उसकी एक मेथडोलॉजी है कि मैं पहले पूरे टेरेस को क्लीन करूंगा, पानी से धो के अच्छे से पूरा डस्ट पार्टिकल्स सब उस छत से मैं हटा दूंगा। क्लीनिंग करने के बाद मैं उस पर ब्रिक बेड कोबा करना चालू करूंगा। फिर ब्रिक बेड कोबा के बाद 7 days उस पर पॉन्डिंग करूंगा। उसके बाद में फाइनली वापस पानी ड्रेन करके एक केमिकल कोट कर दूंगा, वापस 7 दिन पानी भर के देखूंगा और ये मेरी वाटर प्रूफिंग कंप्लीट। अब ये एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट प्लानर को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप पूरे प्रोजेक्ट का शेड्यूल बना रहे हो। अगर आपको यही नहीं पता है कि हर एक्टिविटी को करने के पीछे कितना टाइम लगता है, कितने टाइम क्लाइंट ने पानी भर के देखने के लिए बोला है, नहीं तो आप 5 दिन का शेड्यूल बना दोगे वाटर प्रूफिंग का, तो वो तो ब्लंडर हो जाएगा, बिकॉज क्लाइंट ने आपको बोला है 7 दिन पानी भर के चेक करना है। तो हर एक्टिविटी को करने का एक एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट होता है।
अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी डू दी, उसी के हिसाब से वो एक्टिविटी की जाती है। कंक्रीटिंग का भी एक एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट है कि मैं पाइपलाइन फिक्स करूंगा, मैं पूरे स्लैब को वैक्यूम पंप से क्लीन करूंगा, देन मैं एक साइड से कंक्रीटिंग स्टार्ट करूंगा, मैं पोर प्लान बनाऊंगा, देन मैं लास्ट में स्टेट्स करते हुए नीचे आऊंगा, जो भी मेरा प्रोसेस है। मतलब मुझे हर एक्टिविटी को, प्रोजेक्ट में होने वाली एवरी एक्टिविटी के बारे की एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट पता होना चाहिए, उसी तभी मैं प्लानिंग करने का सोच सकता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप टेक्निकल नॉलेज। देन अगर मुझे एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट ऑलरेडी पता है, देन बात आती है एक्टिविटी सीक्वेंसिंग की। सीक्वेंसिंग क्या होता है कि किसके बाद क्या होगा। अगर मुझे यही नहीं पता है कि पहले छत की टाइल्स लगेगी, उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग होगी, या पहले वाटरप्रूफिंग होगी फिर टाइल्स लगेगी, वाटरप्रूफिंग में भी पहले ब्रिक बेड कोबा होगा या पहले केमिकल कोट होगा, मुझे ये सब चीजें अगर पता ही नहीं है कि किसके बाद क्या होता है, किसके पहले क्या होता है, तो शेड्यूल में नहीं बना पाऊंगा कभी भी। तो पहली एक्टिविटी एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन कैसे करना है मुझे वो पता होना चाहिए। एक्सकेवेशन करने के पहले कौन सी एक्टिविटी करना है मुझे वो पता होना चाहिए। और एक्सकेवेशन करने के बाद मुझे पीसीसी करना है या डायरेक्ट राफ्ट बांधना स्टार्ट करना है, डायरेक्ट फाउंडेशन बांधना स्टार्ट करना है, वो मुझे पता होना चाहिए। उसको बोलते हैं एक्टिविटी सीक्वेंसिंग, वन आफ्टर दी अदर क्या होने वाला है। एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट हो गया हर एक्टिविटी का टेक्निकल डिटेल, सीक्वेंसिंग हो गया कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी होने वाली है। अगर ये दो चीजें आपको आती है तो आप शेड्यूल बनाना स्टार्ट कर सकते हो। आपको ये दोनों चीज पता है, हर एक्टिविटी का डिटेल, हर एक्टिविटी के पहले क्या होगा बाद में क्या होगा वो पता है, तो बस अब आपको उन एक्टिविटीज को आपस में लिंक करना है और स्टार्ट और फिनिश डेट देनी है बस। उस तो आपका एक टाइम फ्रेम वाला शेड्यूल रेडी हो गया। शेड्यूलिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द लिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज। इन सारी एक्टिविटीज की एक के नीचे एक मैंने लिस्ट बनाई। Milestones. Schedule also usually includes a planned start date and finish date, duration and resources assigned to each activity. Effective project scheduling is a critical component of successful time management. जो इंडिया में ये हालत है कि हमारे प्रोजेक्ट्स इतना डिले होते हैं, एक साल का प्रोजेक्ट हम लोग 3-3 साल कंप्लीट नहीं कर पाते, उसके पीछे रीजन ही इनइफेक्टिव प्लानिंग है। जो छोटी कंपनीज में प्लानिंग बिल्कुल भी सही से नहीं की जाती है, उसके वजह से ये सारा टाइम के प्रॉब्लम आते हैं। और टाइम अपने साथ सिर्फ टाइम की प्रॉब्लम नहीं लाता है, कॉस्टिंग बहुत अफेक्ट होती है प्रोजेक्ट की, क्योंकि आपको हर महीने स्टाफ को सैलरी देनी है, आपने जो रेंट पे मशीनें ले रखी हैं उसका आपको हर महीने रेंट भरना है। अगर मैं प्रोजेक्ट को 2 महीने लेट कर दूंगा तो मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें होती हैं। एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट, सीक्वेंसिंग के बाद आप डायरेक्ट शेड्यूल बनाना चालू कर देंगे। वंस आपके प्रोजेक्ट का शेड्यूल फाइनल हो गया, ठीक है, वंस एक शेड्यूल फाइनल हो चुका है, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, अब उसके बाद आपको उस शेड्यूल को ट्रैक करना है। आपने तो अगले 5 ईयर्स का शेड्यूल बना दिया कि फॉर एग्जाम्पल 1 अगस्त 2022 को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है एंड दिस प्रोजेक्ट विल गो ऑन फॉर टिल 1 अगस्त 2027। 5 ईयर्स का मैंने शेड्यूल बना दिया। अब हर महीने, हर तीसरे चौथे दिन आई नीड टू ट्रैक दिस प्रोजेक्ट कि एक्चुअली जो मैंने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है साइट पे या नहीं हो रहा है, उसे हम लोग प्रोजेक्ट ट्रैकिंग बोलते हैं। सो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड यूज्ड टू ट्रैक द प्रोग्रेस of task in a project. By tracking your project you can compare actual to planned progress. मैंने क्या प्लान किया था और साइट पर उसकी जगह एक्चुअली क्या ब्लंडर हो रहा है, वो जो हम ट्रैक करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। और इश्यूज आइडेंटिफाई करके हम रख लेते हैं। अब प्रोजेक्ट ट्रैकिंग करने के बाद आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम खत्म नहीं होता। आपने इश्यूज तो लिख लिए कि जो whoever is raising hand, please you can ask your doubts at the end of the session, or if it is necessary to ask right now you can type in the chat box, no problem. But अगर आपको वन ऑन वन कोई डाउट्स पूछना है तो आप सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। दैट इज जस्ट आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन इन 5-10 मिनट्स, तब you will get 15-20 minutes to ask doubts. That time you can easily ask doubts throughout the session, no problem. Then अब आपने इश्यूज नोट डाउन कर लिए, तो उस इश्यूज को नोट डाउन करके आपको वापस से उस प्रोजेक्ट को ट्रैक पे लेके आना है कि कहाँ कहाँ डिले हो चुका है, उस डिले को मैं कैसे ओवरकम करूं, कैसे मैं उस प्रोजेक्ट को वापस ट्रैक पे लेके आऊं, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। यहां जाके शेड्यूलर का, प्लानर का काम खत्म होता है। ठीक है, दिस इज दी सम बेसिक स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। अब हम एमएसपी पे आते हैं। जब हम एमएसपी में प्लानिंग करते हैं तो 4 टाइप के टास्क लिंक होते हैं। ठीक है, वन इज फिनिश टू स्टार्ट, वन इज स्टार्ट टू स्टार्ट, वन इज फिनिश टू फिनिश एंड वन इज स्टार्ट टू फिनिश। इन चारों को हम डिटेल में डिस्कस करके फिर हम ये डेमो सेशन का टीचिंग पार्ट स्टॉप करेंगे। सो बेसिकली अब मैं एमएसपी में घुसा हूं। दिस वाज जस्ट बेसिक्स ऑफ प्लानिंग। मतलब एक्सेल और एमएसपी में डिफरेंस ये है कि जब आप ऐसे लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे एक्टिविटीज का एक के नीचे एक, तो एमएसपी को आपको ये समझाना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, एमएसपी प्लानर नहीं है, एमएसपी एक सॉफ्टवेयर है।
तो एमएसपी को यू नीड टू टेल दैट विच एक्टिविटी इज गोइंग टू हैपन आफ्टर व्हाट एंड व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, ऑल दोस थिंग्स। सो 4 तरीके होते हैं जिससे टास्क लिंक होते हैं एमएसपी में। वन इज, फर्स्ट वन वी विल स्टडी फिनिश टू स्टार्ट। ओके, फिनिश टू स्टार्ट क्या होता है? बेसिकली इसका मीनिंग ये इस टाइप का एरो होता है फिनिश टू स्टार्ट का। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो फिनिश टू स्टार्ट में इस टाइप का एरो होगा दो एक्टिविटी में। ये एक ए एक्टिविटी है, मान लीजिए इसका नाम, ये एक्टिविटी ए एक्टिविटी है कॉलम रीइंफोर्समेंट और बी एक्टिविटी है कॉलम शटरिंग। तो जब कॉलम में सरिया बांधना यानी कि कॉलम रीइंफोर्समेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसी के बाद आप कॉलम के आसपास शटर लगाना या शटरिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ फिनिश टू स्टार्ट सेटअप, मतलब वंस ए एक्टिविटी विल फिनिश देन ओनली बी एक्टिविटी विल स्टार्ट, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स है फिनिश टू स्टार्ट के। ये सबसे कॉमन लिंक है जो हमें 80% ऑफ द टाइम सिविल इंजीनियरिंग में यूज करना पड़ता है। मतलब पहली एक्टिविटी खत्म होगी, फिनिश होगी, तभी दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। सो दिस जो राइट हैंड साइड है एक्टिविटी ए का, इट इज ये लेफ्ट हैंड साइड के बी से कनेक्ट हो रहा है, इसको हम लोग फिनिश टू स्टार्ट बोलते हैं। हर एक्टिविटी का इधर वाला स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इधर वाला फिनिश पॉइंट होता है। ऐसे ही बी एक्टिविटी का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिश पॉइंट है। तो इसका जो फिनिश पॉइंट है, इसकी जो टेल है, ये इसके हेड से लिंक हो रही है स्टार्ट पॉइंट से। इसे हम कहते हैं फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप। जब भी हम दो एक्टिविटीज के बीच में फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप देंगे, इस टाइप का टेल बन के आ जाएगा हमारे सॉफ्टवेयर में, जो गैंट चार्ट। दूसरा होता है स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप, मतलब ये दोनों एक्टिविटी कभी भी खत्म हो सकता है एक एक्टिविटी 10 जुलाई को खत्म हो रही है, दूसरी एक्टिविटी 20 जुलाई को खत्म हो रही है, बट ये दोनों एक्टिविटी स्टार्ट साथ में होंगी, उसको कहते हैं हम स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मैं इंटरनल पेंटिंग और एक्सटर्नल पेंटिंग दोनों साइड्स में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों, मेरा घर का प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है मेरी बिल्डिंग का, अब मैं बाहर भी पेंट साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ, अंदर भी पेंट साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा अंदर का पेंट पहले कंप्लीट हो जाएगा बाहर के पेंट के, बट स्टार्ट ये दोनों एक्टिविटी में साथ में कर रहा हूँ। दैट इज नोन एज स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप। तो ये दोनों एक्टिविटीज का जो स्टार्ट वाला टेल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें आप देखेंगे तो फिनिश वाला टेल इसके स्टार्ट टेल से कनेक्टेड था, इसमें इन दोनों का स्टार्ट टेल एक दूसरे से कनेक्टेड है। दिस इज नोन एज स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप। थर्ड होती है फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप, मतलब दोनों का फिनिश टेल एक दूसरे से कनेक्टेड है। नो मैटर जब भी एक्टिविटी स्टार्ट हुई हो, ये फिनिश सेम डेट पे होगी, ठीक है। हो सकता है एक एक्टिविटी 1 जुलाई को स्टार्ट हुई, सेकंड एक्टिविटी 2 जुलाई को स्टार्ट हुई, बट ये दोनों एक्टिविटीज फिनिश सेम डे पे होंगी, दैट इज 10 जुलाई या जो भी इनकी डेट है। इसे हम कहते हैं फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप। और ये जो फोर्थ वाला है स्टार्ट टू फिनिश, ये फर्स्ट वाले का पूरा अपोजिट है। फर्स्ट वाला कहता है कि ए एक्टिविटी खत्म होगी तभी बी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और ये उसका एकदम अपोजिट है कि ए एक्टिविटी स्टार्ट तब होगी जब बी एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। ये एकदम अपोजिट है फिनिश टू स्टार्ट का। इसके स्टार्ट टू फिनिश के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही रेयरली आते हैं, बट जब हम सॉफ्टवेयर पे शेड्यूल बनाएंगे उस टाइम अगर कोई आएंगे एग्जांपल्स तो आई विल टेक इट। ऐसे 4 टाइप के लिंक्स हमारे एमएसपी में होते हैं, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश एंड स्टार्ट टू फिनिश। इसी के बेसिस पे हमारा शेड्यूलिंग चलता है। कुछ और बेसिक डेफिनेशंस है जिनको हम थोड़ा सा बेस में ले लेते हैं, देन विल स्टॉप द सेशन। प्रीडेसर एक्टिविटी एंड सक्सेसर एक्टिविटी। प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर ये हमारे नॉर्मल इंग्लिश के टर्म्स हैं, ये एमएसपी के टर्म्स नहीं है, हमने बचपन में स्कूल में पढ़े थे। प्रीडेसेसर मतलब जो पहले आता है, सक्सेसर जो उसके बाद आता है। तो ए को हम प्रीडेसेसर बोलते हैं, बी को हम सक्सेसर बोलते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। अब 2 चीजें होती हैं, लैग और लीड। लैग और लीड का सिंपल मीनिंग क्या होता है? अगर मैंने कोई 2 एक्टिविटी के बीच में रिलेशन दिया है एफएस, मतलब फिनिश टू स्टार्ट, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए एक्टिविटी जब फिनिश होगी ओनली देन बी एक्टिविटी विल स्टार्ट। दिस इज नोन एज फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप। बट हो सकता है कि टेक्निकली इन 2 चीजों के बीच में गैप हो। कैसे गैप आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फ्लोर का मैंने कॉन्क्रीटिंग कर दिया, ठीक है, उसके बाद 1 दिन 2 दिन मैं क्यूरिंग करके उसके बाद ही सेकंड फ्लोर का काम स्टार्ट करूंगा, कॉलम इरेक्शन या जो भी है। तो उस केस में मुझे 2 दिन का लैग देना है इन 2 एक्टिविटीज के बीच में। अब कोई भी 2 एक्टिविटीज के बीच में अगर आप गैप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसके पीछे कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल रीजन हो सकता है या कोई मैनेजेरियल रीजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ अभी फर्स्ट फ्लोर तक करने की परमिशन दी थी क्लाइंट ने, आपने फर्स्ट फ्लोर कर दिया, उसके बाद क्लाइंट ने बोला है कि 10-15 दिन बाद गवर्नमेंट की अथॉरिटी आएगी चेकिंग करने, अगर करेक्ट होगा तो हमको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर की प्लिंथ चेकिंग हो जाने के बाद काम करने की परमिशन मिलेगी गवर्नमेंट से।
जिसको हम सीसी लेना बोलते हैं गवर्नमेंट से। ये सब मल्टीज के प्रोजेक्ट के टर्मिनोलॉजीज हैं। तो हो सकता है कि आपको 1 महीने का गैप भी देना पड़े दो एक्टिविटीज के बीच में। तो कोई भी रीजन की वजह से अगर आपको गैप इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, दैट गैप इज नोन एज lag. So fs+2 means at whatever date this activity will finish, after 2 days activity b will start. एक practical example, अगर a एक्टिविटी 1 जुलाई को खत्म हो रही है तो उसमें 2 दिन का लैग रहेगा, यानी कि 2 और 3 जुलाई का गैप आप दे रहे हैं, एंड 4 जुलाई से बी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। दिस इज नोन एज लैग। लैग का कंप्लीट अपोजिट होता है लीड, जिसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब लैग में मैं 2 दिन का गैप दे रहा था, लीड में मैं 2 दिन ओवरलैप कर रहा हूं। कैसे ओवरलैप कर रहा हूं मैं बताता हूं। रिलेशनशिप तो अभी भी फिनिश टू स्टार्ट है। एग्जाम्पल, ए एक्टिविटी मेरी स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई को एंड खत्म हो रही है 5 जुलाई को। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल एफएस रिलेशनशिप देता हूं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5th को जब ए खत्म होगी, 6th को बी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और 10th तक बी एक्टिविटी चलेगी। अब अगर मैं fs+2 देता हूं तो इसका मतलब यह है 1st to 5th ए चलेगी, 6th एंड 7th ऑफ रहेगा, 8th से बी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। बट अगर मैं fs-2 देता हूं, इसका मतलब यह है कि 1st से 5th तक तो ए चलेगी ही, बट बी एक्टिविटी ए के फिनिश होने के 2 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 4th एंड 5th 4 तारीख को ही बी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, एंड 4th और 5th ये 2 दिन तक ए एंड बी दोनों एक्टिविटीज पैरेलली चलेंगी। वापस रिपीट करता हूं, ए का ड्यूरेशन है 5 डेज, ए 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक चल रही है। बी का पहले ड्यूरेशन था 5 डेज, जो 6 जुलाई से लेकर 10th तक चल रही थी। अब मैंने इनमें रिलेशनशिप दे दी fs-2, मतलब 2 दिन मैं ये दोनों एक्टिविटीज को पैरेलली चलाना चाहता हूँ। रिलेशनशिप अभी भी फिनिश टू स्टार्ट ही है, बस ए एक्टिविटी के फिनिश होने के 2 दिन पहले ही मैं बी एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो जो लास्ट के 2 दिन है, 4th जुलाई एंड 5th जुलाई, उन 2 दिन ए और बी एक्टिविटी दोनों पैरेलली चलेंगी। 4th जुलाई से ही बी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब होता है लीड। लीड का हम बहुत बार यूज करते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट बहुत डिले हो गया है और हमें पता है कि हम कोई 2-3 एक्टिविटी साथ में चला सकते हैं ताकि हम वापस प्रोजेक्ट को ट्रैक पे ला सकें, तब हम लोग लीड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें 6 मंथ्स में कंप्लीट करना है, 1 साल में कंप्लीट करना है, बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है क्लाइंट के थ्रू, तब हम उन एक्टिविटीज के बीच में लीड का यूज करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं लैग और लीड। ये सारी चीजें हम लोग एमएसपी में यूज करेंगे। देखिए इस टाइप की एमएसपी की स्क्रीन दिखती है। यहाँ पे सारे टास्क के नेम्स डालते हैं, यहाँ पे हम ड्यूरेशन डालते हैं, यहाँ हम स्टार्ट और फिनिश डेट डालते हैं, यहाँ हम लोग रिलेशनशिप देते हैं। इधर देखिए 1SS का मतलब है कि 1 और 2 एक्टिविटी स्टार्ट टू स्टार्ट लिंक्ड है, मतलब इन दोनों की स्टार्ट डेट सेम रहेगी, दोनों एक्टिविटी सेम दिन पे स्टार्ट होंगी। इसलिए आपको दिखेगा कि ये भी 3/2/2015 को स्टार्ट हो रही है और ये भी 3/2/2015 को स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आपको एरो भी वही दिखेगा, स्टार्ट टू स्टार्ट वाला। जहां पे फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है, वहां पे आपको एरो भी फिनिश टू स्टार्ट वाला दिखेगा। तो ये अभी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट ये एक बेसिक है एमएसपी का। सो आई स्टॉप हियर। आगे भी क्रिटिकल पाथ, बेसलाइन, बहुत सारी चीजें मैं लेना चाहता था, बट फिर डाउट्स पूछने के लिए टाइम नहीं रहेगा। सो आई एम स्टॉपिंग द डेमो सेशन हियर। अभी जिसको भी कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू एमएसपी और प्लानिंग और एनीथिंग, दे कैन अनम्यूट एंड आस्क द डाउट्स। एक डाउट था सर, कैन वी गेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सपोर्ट? सो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में कैसा है, जो जिसका मैं आंसर पहले ही कर चुका हूँ, कि एमएसपी फ्री सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स के लिए नहीं देता है। वो आप जब गूगल पे, यूट्यूब पे डालेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल एमएसपी 2016 इन माय पीसी, आपको डायरेक्ट लिंक आ जाएगा और बहुत इजीली एक्सेल जैसे वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी के कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से। उसके बाद भी अगर आपको इश्यूज आते हैं तो हम जो एमएसपी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे उसमें सब लोग आपस में डिस्कस करके एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं। बट जनरली इट इज वेरी इजी टू इंस्टॉल एमएसपी। रेस्ट एनीवन जिसको जो भी डाउट्स हैं आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस मिस्टर अमित, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आपको जो भी पूछना है। Thank you, sir. I request everyone that I have given the permission to unmute yourself. Now you all can unmute yourself and ask your doubts. Also, I have shared registration link. Those who want to enroll for the course, you can go through the registration link. Course price is rupees 1999.
Demo link is also there. You can watch demo on the YouTube through the link. And it's time for doubt session. You can ask your doubts with the expert. तो सर ये प्रोजेक्ट के जो प्लानिंग बताएंगे आप कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का रहेगा या बिल्डिंग का रहेगा सर ये? हेलो। हाँ, जो मैं सेशन के साथ बताऊंगा वो पूरा बिल्डिंग्स का रहेगा, बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल, कमर्शियल का, क्योंकि मैंने उसी में 4-5 साल काम किया है और अभी भी उसी में मैं काम कर रहा हूँ। बाकी पर आप अगर एमएसपी सीखते जाते हैं और आप अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट के हैं तो आप पैरेलली आपके एक्टिविटीज का आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो आप वो करते जा सकते हैं। उसमें भी आपको कुछ डाउट्स आएंगे तो आई टेक केयर ऑफ दैट, बट मैं जो सेशन के साथ बताऊंगा वो पूरा रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स का रहेगा, मतलब कि स्टार्ट टू एंड, मतलब जो रहेगा स्टार्ट पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम 2 शेड्यूल्स बनाएंगे क्लास में सॉफ्टवेयर पे साथ में बैठ के। ओके सर, थोड़ा सा आप, मैं लेट ज्वाइन किया सर, वो प्रोफाइल थोड़ा सा बता दें सर अपना। अब मैंने निकमार से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किया है, एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। उसके पहले मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है एंड उसके बाद 3.5 इयर्स मैंने शापुरजी पालोनजी में एज डेप्यूटी मैनेजर प्लानिंग काम किया है, जिसमें एक्सेल, प्राइमावेरा और एमएसपी तीनों पे मैंने काम किया है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में ही शापुरजी में 3.5 साल। फिर मैंने जॉब क्विट करके मैं अभी अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन फर्म चला रहा हूँ लास्ट 2 इयर्स से, वो भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में ही। ठीक है, थैंक यू। एनी डाउट्स रिलेटेड टू एमएसपी? 21 डेज का सेशन रहेगा, 1 आवर डेली। रोज जो प्रेजेंटेशन मैं दूंगा उसमें मैं सारे शॉर्टकट्स, कीज सब ऐड कर दूंगा, वो भी डेली आपको शेयर किया जाएगा। प्लस जो भी हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे उस दिन वो भी फाइल आपको शेयर की जाएगी, प्लस आपके पास रिकॉर्डिंग भी रहेगी पूरे उस 1 घंटे के सेशन की। तीनों चीजें आपको डेली प्रोवाइड की जाएंगी फॉर 21 डेज। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट आएगा सेशन खत्म हो जाने के 2 महीने बाद भी, तो उसके लिए भी वी विल कोऑर्डिनेट, बट वो आप डायरेक्टली मुझसे नहीं पूछ पाएंगे। 21st डे तक आपको जो भी डाउट्स पूछना है वो आप डायरेक्टली पूछ पाएंगे। उसके बाद का कोऑर्डिनेशन हमारा फिर व्हाट्सएप और उस पर चलेगा। विच कंटेंट इज कवर्ड ड्यूरिंग दिस कोर्स? सर वो तो मैंने स्टार्टिंग के जो 15 मिनट पूरा बताया था 21 डेज में मैं क्या क्या लूंगा, वही पूरा कंटेंट कवर होगा। आप ये वाला वीडियो का लिंक शेयर हो जाएगा, वो वापस से देख सकते हैं अगर आपको उसमें कुछ डाउट हो। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मैंने पूरा वही बताया था कि 21 डेज में डे बाय डे हम लोग क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं एमएसपी में। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप वो अभी लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा यूट्यूब का, उसमें आप पूरा देख सकते हैं, पूरा स्टार्टिंग का 15-20 मिनट्स का। उसमें मैंने डे बाय डे बताया है कि कैसे हम लोग कौन से दिन क्या कवर करेंगे। ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट एमएसपी इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल तक पूरा रहेगा, लास्ट अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस तक। अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस भी हम लोग एमएसपी में करेंगे, रिपोर्ट्स जितनी बनती हैं एमएसपी में वहां तक, रिसोर्सिंग, कॉस्टिंग, बजटिंग, सब कुछ हम लोग पूरा एमएसपी में लास्ट तक जो जो चीजें एमएसपी में होती है एवरीथिंग वी विल कंप्लीट। यस मिस्टर राजन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने अनम्यूट किया है। हेलो। हेलो जी बोलिए। जी सर, आवाज नहीं आई सर। नहीं, आपने अनम्यूट किया तो आई थॉट आप कुछ डाउट पूछना चाह रहे हैं। नहीं ओके ठीक। सर जी हेलो बोलिए। कुमार, जी बोलिए। ये क्लास कब रहेगा सर? डेट ऑफ स्टार्ट? इसी मंथ स्टार्ट हो रहा है, 3-4 दिन बाद ही कुछ। वो एग्जैक्ट डेट आपको वो अभी प्रो ट्रेनी टीम से आपको आ जाएगा, एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं, बट अभी 3-4 दिन में ही स्टार्ट होने वाला है। ओके, क्योंकि लास्ट बैच मैं मिस कर गया था तो कुछ ऐसे हेक्टिक वाटर सप्लाई डिवीजन में थोड़ा सा, लेकिन इस बार मैं छोड़ना नहीं चाहता तो इसलिए मैं पूछा कि देख लेता हूँ। हाँ, वो
नहीं, अभी वो 3-4 दिन में ही कभी स्टार्ट होने वाला है। वो आपने जो फॉर्म वगैरह जो चैट बॉक्स में आ रहा है वो आप फिल कर देंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, अच्छा सेशन था। थैंक यू सो मच। कैन वी गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो एज वेल? यस, जो ऊपर लिंक जो शेयर किया गया है उसमें यूट्यूब पे पूरा आज की रिकॉर्डिंग का भी पूरा सेशन ऑलरेडी डल चुका है। Any more doubts related to the session or you're related to MSP, or we'll end this session here then? बाकी कुछ नहीं लैंग्वेज है, नेक्स्ट क्लास जी होगा तब फिर ही कुछ पता चलता है। अभी तो हम लोग एकदम बिगिनर्स हैं, नहीं है क्या पूछ सकते हाँ हैं या हाँ क्या। आप स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू हो पाएगा कुछ नहीं। हाँ हाँ, वो तो तो पूरा सर मैं हम बहुत लोग क्लास में मिलते हैं सर। ओके ओके ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, everyone, for joining the session. I hope this session was knowledgeable and helpful. Once again, thank you and good night.